So only two students. Okay. Any question which was tough for you or you didn't understand the language? Any question you want me to discuss that with you? Yes. Paper was okay. Paper was clear. Yes. मैम फर्स्ट क्वेश्चन में इंडो इन्फ्लुएंस होगा ना? हाँ, undue influence ही होगा. Very good. Very good. ओके मैम. Like case was such कि he has gone for a treatment and medical attendant has influenced and used the position, right? So it was undue influence. It was very much right. Undue influence. Okay. Any other question? Yes. Yes, Deepak. नो मैम. Okay. Sushmita, five questions were easy to attempt. I'm in fourth question. What will we have to write? What was the question? Please let me know. ऐसे मुझे question तो याद नहीं होगा. Just Um, give. a minor property is liable to necessary supply to him. State briefly the position of minor with regard to the agreement entered by him. Yes. हाँ, Mm-hmm. इतना. So it was basically minor is not at all responsible for making any payment if he enters into a contract with any supplier. But if those contracts related to, yes, good morning Nisha, good morning Bache, related to necessities like food, shelter and clothing, then in that case minor's property will be responsible, not the minor. तो आपको उसमें एक एग्जांपल देके बताना था कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए who is 14 years old has taken certain goods on the rent, rent basis, right? Yeah, to make the payment later on. So those goods are of supply nature, necessity nature. जैसे कि वो फूड की आइटम्स हो सकती हैं, वो शेल्टर हो सकता है, कुछ उसकी क्लोथिंग हो सकती है, विच इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू कवर द बॉडी. In that case, if minor declines the payment, if minor refuses to make the payment, then his property will be responsible. फिर सप्लायर के पास एक राइट है कि माइनर को स्यू नहीं कर सकता, बट माइनर से पेमेंट निकलवाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड एंड कैन बी टेकन. So court may give the order कि yes, minor's property will be responsible for making the payment. Only in the case when it is necessity item. Please understand what is coming under necessities: food, shelter, and clothing. That's all. If any contract is of nature ki he is playing casino and he declines ki I will not make the payment and he is a minor, casino owner cannot claim the payment, right? That does not come under necessity. But necessity just include food, shelter and clothing. उसकी पेमेंट रिकवर करने के लिए माइनर की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी. ये था. ओके बेटा. यस. Okay, okay. Any other doubt in all the question papers? Yes, in any question specifically? किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट? अभी मैं कॉपीज चेक करूंगी इस वीक में. टुमारो इट इज 2 अक्टूबर, तो इस वीक में मैं चेक करूंगी. ओके निशा, नो, ग्रेट ग्रेट, फाइन. Anything you want to discuss in terms of old topics or question paper, you're most welcome. Else I'm going to cover up the old topic. Yes, discharge of contract. Anyone having any doubt, please let me know. Yes. Okay, then we'll let us start, right? I'm going to present my screen. We were talking about discharge of contract, right? Yes. All of you are able to see the screen, right? Yes. Yes. So we have discussed discharge by agreement or consent.
That means if two parties are ready and giving mutual consent to each other, the old contract in that case will be treated as completed. तो नोवेशन का मतलब क्या था? जस्ट फॉर ए रिवीजन से, न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टेकन इनटू प्लेस इंस्टेड ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? So new contract is like old contract will be treated as discharged, complete हो चुका, ठीक है? तो नया कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा तब ये मान लिया जाएगा, चाहे वो काम नहीं हुआ है, नए कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया तब ये माना जाएगा कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, क्योंकि वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे बन रहा है। तो नोवेशन का मतलब क्या है? नॉट ओनली न्यू कॉन्ट्रैक्ट बट न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोवेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि old contract is replaced by new contract. That means new contract has taken the place of old contract. Okay, yes. Good morning. Yes, novation is when new contract is made instead of old contract. So old contract is cancelled and new contract is formed, that is known as novation. ऐसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स तो बहुत सारे बनते रहेंगे, है ना? सारे नोवेशन नहीं कहलाएंगे। कौन सा नोवेशन कहलाएगा? जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके जब नया बनाया जाएगा, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड इन दैट प्लेस, राइट? रिसेशन का मतलब है कि यस, certain certain cancellations are done. That means old contract cancel भी हो गया और नया नहीं बना। जब नया बन जाए तो नोवेशन, जब नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो रिसेशन। रिसेशन का मतलब रिजाइन कर देना, कैंसिल कर देना, डिक्लाइन कर देना। कोई भी वर्ड आप तीनों में से याद रखिएगा। तो डिक्लाइनिंग द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, म्यूचुअल कंसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां दोनों पार्टीज रजामंद होंगी तभी ये चीजें पॉसिबल है। ये 6 की 6 जो चीजें हैं, इसमें म्यूचुअल कंसेंट तो हर बार आएगा। अल्टरेशन, जब आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई एक दो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की हैं, तो इट मींस कॉन्ट्रैक्ट इज अल्टर्ड। नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, जस्ट एक दो टर्म्स एंड कंडीशन आपने बीच में चेंज कर दी। दैट चेंज में भी प्लीज अंडरस्टैंड कि आपने लिखा था जैसे कि गुड्स विल बी सप्लाइड बाय 25th ऑफ एवरी मंथ, आपने कहा कि अब 25th की बजाय आप जो है ना 7th ऑफ एवरी मंथ कर दीजिए। तो जब आपने एक टर्म कंडीशन चेंज की है, इंस्टेड ऑफ 25th नाउ गुड्स विल बी सप्लाइड ऑन 7th ऑफ एवरी मंथ, तो दिस इज नथिंग बट अल्टरेशन। ना तो ये नोवेशन है ना ही ये रिसेशन है, ये क्या है? अल्टरेशन। यानी कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपने चेंज की है म्यूचुअली, राइट? रिमिशन का मतलब है कि आपने जितना काम लेना था, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उससे कम आप ले रहे हो। लेसर परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड, इज डिमांडेड। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं। जस्ट बिकॉज कोविड-19 की वजह से नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव गॉन थ्रू रिमिशन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, जैसे बसेस का हो गया, टीपीसी होता है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली। तो आपने देखा होगा कि आई गिव यू एग्जांपल। हाँ, मान लीजिए कि कंपनी के पास जो है ना काफी सारे ऐसे काम होते हैं जो थर्ड पार्टी को दे देती है। प्लम्बरिंग का काम हो सकता है, लिफ्टिंग का काम हो सकता है, गार्डनिंग का काम हो सकता है, राइट? अब ये कोविड-19 की वजह से व्हेन एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, टीपीसी यानी कि कंपनी का थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिमिशन टाइप ऑफ हो गया। ठीक है, जहां आप 4 गार्डनर भेजते थे वहां एक ही भेजिएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जहां पे आप 15 डेज के बाद विजिट करते थे वहां पे आप मंथ के बाद करिएगा। So anything which is accepted in terms of lesser performance comes under remission, and remission is very very common. नॉट ओनली दिस कोविड-19, जहां पे नेशनल इमरजेंसीज होती हैं, जहां पे कुछ डिमांड एंड सप्लाई का गैप कम हो जाता है, वहां पे नॉर्मली कंपनीज प्रेफर टू हैव रिमिशन। जैसे डिमांड, मान लीजिए आज एक होटल वाले ने डिमांड की थी कि हाँ हमारी मार्केट चलती है तो आई नीड 100 kgs ऑफ मिल्क। ओके, 100 लीटर्स ऑफ मिल्क जब डिमांड चल रही थी, इमीडिएटली डिमांड हैज कम डाउन, तो होटल पीपल विल बी डेफिनेटली आस्किंग फॉर रिमिशन कि अब 100 लीटर तो दूध लगेगा नहीं, आप ऐसे करिए 50 लीटर कर दीजिए।
नाउ दिस इज नथिंग बट रिमिशन. रिमिशन का मतलब है नो चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लेसर परफॉर्मेंस. यानी कि अगर कोई और चेंज आता है टर्म्स एंड कंडीशन में तो उसको अल्टरेशन कहते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरेशन एंड रिमिशन? प्लीज अंडरस्टैंड. When I say alteration, any terms and conditions are changed. Remission means lesser performance in terms of quantity, in terms of performance, in terms of measurable, in terms of non-measurable. So it may be anything, but that is lesser performance. जैसे कि अगर कोई परफॉर्मेंस करता है कि आपको जो है पूरी रात का जगराता करना है, ओके, थोड़े टाइम बाद ऐसी सिचुएशन आई, उन्होंने कहा कि नहीं आपको 2 घंटे की चौकी करनी है. प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन जगराता हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, प्लीज बी ऑन टाइम, short hours of this, it is known as remission. Remission का मतलब lesser performance is accepted. Okay, yes. I hope the difference is clear. Somebody please speak up. Alteration, remission तक कोई डाउट है बच्चे? नो मैम. ओके. वेवर, वेवर का मतलब होता है वेव कर देना. कुछ चीजें, कुछ ऑब्लिगेशंस आपने खत्म कर दी, वेव कर दिया, उसको फ्रीडम दे दी, राइट? सो इट इज नॉट लाइक lesser performance. It is like certain things which are imposing as an obligation, set them as free. तो कुछ इंसिस्ट नहीं करना, मतलब कुछ ऐसा आपने चेंज लिया है कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें आप उसको इंसिस्ट नहीं करोगे कि ये करना है या नहीं करना है. अब जैसे रिमिशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उसी में वेवर का मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ. कि जैसे अगर आपने कहा कि आपके 4 प्लम्बर आ रहे थे, है ना, हर मंथ के 4 प्लम्बर आ रहे थे, आपने बोला एक से ही काम चल जाएगा, एक को भेजिएगा. तो दिस इज समथिंग रिमिशन, लेसर परफॉर्मेंस. आपने कहा भेजना ही नहीं है. During these 6 months, no gardener, no plumber will come into my company. That means waive. आपने उसको freedom दे दिया, आपने उसको obligation से free कर दिया कुछ time के लिए. That is known as waiver. Waive दे दिया कि yes, you need not to come. Now number of companies like they are giving waiver. You have an option, work from home, WFH, or you can come down to office. Now waiver means not to insist कि वर्क हैज टू बी डन, ये आना ही चाहिए, गार्डनिंग मेंटेन होनी चाहिए, वो हमारी प्लम्बिंग का काम रेगुलर चलना चाहिए. आपने प्लम्बर कम मंगवाया तो वो रिमिशन बन गया. बुलाया ही नहीं, आपने कहा कि देखेंगे जब नॉर्मलाइज होगा तब बता देंगे, आपने उसको उस टाइम तक फ्री कर दिया. दैट इज नोन एज वेवर. Is the difference clear? Remission is you are accepting the lesser performance, but waiver में you are not at all accepting any performance. You are giving them certain freedom and not to impose you have to perform it. You have to perform the task. So certain obligations are set as free by the promisor, right? And merger is just like when the companies are merging or the inferior right is getting by the superior right, then that kind of contract is called merger contract. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कुछ कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, कुछ कंपनीज के अगर आपके साथ टाई अप चल रहे हैं, ऑल दोस कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कंपनी बंद हो जाती है, किसी कोई एक्वायर कर लेता है उसको, दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेती, तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्वायर करेगी. एक्विजिशन या प्रिक्योरमेंट ऑफ कंपनी मींस प्रिक्योरमेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्वायर कर लिए, ऑल दोस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड मर्जर कॉन्ट्रैक्ट्स. Okay, so merger contract is contract which is happening because of the inferior right taken by the superior right. कोई एक कंपनी, कोई एक पार्टी, कोई एक पर्सन दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट अपने में मर्ज कर लेता है, ले लेता है, that is known as merger contract. Okay बच्चे? Yes, any doubt? So this was we have actually discussed before examination. Yes, any doubt? नो मैम. Okay. Now I am going to talk about third, that is discharge by impossibility of performance. Now please understand what is impossibility. Contract cannot be completed. If the contract is such, you have to, I'll make you payment in lakhs if you are breaking the stars from the sky. This is impossible. So impossible means any task which cannot be performed, which cannot be completed, right, which is just done for the fun sake. मतलब आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसको आप कर ही नहीं सकते हो, राइट?
तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है, नंबर वन, when they are known to the parties it is very much void, it cannot be challenged. पार्टीज को भी पता है कि वो दूसरा पर्सन कभी भी सितारे तोड़ के नहीं ला सकता, दे आर वेरी मच अवेयर। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, दे आर कंप्लीटली वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? यस। So if it is known to the parties, they are entered into a contract, that contract is impossible to perform, then that is called void ab initio, cannot be challenged, right? Now, unknown to the parties, please understand, if parties are not aware, like the contract is that may be performed, उनको लगा कि शायद हो सकता है ऐसा कि I give you a challenge कि you have to go to Antarctica side, south side, and you have to see and make the recording for 1 hour. Now parties may assume कि अंटार्कटिका जाना और साउथ साइड जाना बहुत इजी है, राइट? अननोन टू द पार्टीज कि ये परफॉर्म नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, उनको नहीं पता है, देन इन दैट केस इट विल बी वॉइड ओनली बट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक। इन बोथ द केसेस इट इज वॉइड, चैलेंज कैन नॉट बी मेड इन द कोर्ट। कोर्ट में आप उसको स्यूट नहीं कर सकते, कोर्ट में आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा सकते, आप उससे कंपनसेशन नहीं ले सकते, चाहे आपको पता है तब भी, नहीं पता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल मिस्टेक एंड इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट? yes, who has an okay, so now please understand, uh, now both the facts are void from the beginning, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता था चाहे नहीं पता था, इट विल बी वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द प्रोमिसर अलोन नोज द इम्पॉसिबिलिटी, जिसने काम लेना है उसको पता है कि ये नहीं हो सकता, देन ही हैज टू कंपनसेट द लॉस सफर्ड बाय द प्रोमिसी। उसने कहा कि यू हैव टू गो टू अंटार्कटिका साउथ साइड, ही हैज मैनेज्ड एवरीथिंग, he has gone to Antarctica but it was so chilled that he cannot move to south side। तब उस केस में जब प्रोमिसर को पता था कि ये नहीं होना है, प्रोमिसी फिर भी करता है, प्रोमिसी को तो पता ही नहीं था, राइट? जब एक की नॉलेज में है और दूसरे की नॉलेज में नहीं है, तब उस केस में प्रोमिसी को उसको लॉस जितना भी हुआ है वो देना पड़ेगा, देन इन दैट केस इट इज चैलेंजेबल, राइट? नेक्स्ट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जो पहले तो पॉसिबल था बट लेटर ऑन इट इज इम्पॉसिबल। आई गिव यू एग्जांपल, सो दिस इज समथिंग पाथ फ्रॉम पॉसिबल टू impossible. Earlier it was possible and later on it became impossible due to certain reason, मैं बताऊंगी वो reason। जैसे चाइना में के साथ कॉन्ट्रैक्ट था एंड कंपनीज वर डूइंग द बिजनेस इन इंडिया, आउटब्रेक ऑफ वॉर हो गया, नाउ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर बिकमिंग इम्पॉसिबल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं सुपर विनिंग। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि जहां पे पहले तो पॉसिबल था बट लेटर ऑन इट इज इम्पॉसिबल। आपने कभी देखा होगा कि अमेजोन जैसे ही बिकॉज हिज बिजनेस फ्रॉम इंडिया इज गोइंग वेरी फैबुलस, वेरी वेरी फैंटास्टिक, उसने चाइना फोन और चाइना वो प्रोडक्ट रखने बंद कर दिए। Now look at the scenario. There are certain companies also who are saying this company is dealing with the Indian products, भारत निर्मित, उनको लिखना पड़ रहा है अपनी पहचान देने के लिए। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जब तक रिलेशनशिप वाज एट पीस इट वाज वेरी मच पॉसिबल, व्हेन द रिलेशनशिप डिस्टर्ब इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो सुपरवीनिंग ऐसा होता है कि जहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है इट वाज वेरी मच पॉसिबल बट लेटर ऑन इट बिकेम इम्पॉसिबल। तब किन किन केसेस में होगा? नंबर वन, इफ योर सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही डिस्ट्रॉयड हो गया। आपने कहा कि यस आई विल बी गिविंग यू 500 kgs ऑफ राइस बाय 7th ऑफ एवरी मंथ, आपके गोडाउन में आग लग गई। नाउ व्हाट टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट मैटर? राइस इज लॉस्ट। When rice is lost, it means supervening impossibility हो गई, he cannot supply the rice। Earlier it was very much possible, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसने साइन किया कि हाँ मैं आपको हर महीने की 7 तारीख को
ये किलो राइस बेच दिया करूंगा। पर कुछ टाइम के बाद उसके गोडाउन में आग लग गई, ना तो अब गोडाउन है ना ही राइस है। व्हेन सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड बाय एनी नेचुरल और अननेचुरल कैलामिटी, इट इज ट्रीटेड एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी कि नंबर 1 में ये माना जाएगा कि ये अब इम्पॉसिबल है, ऐसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अब आगे नहीं चल सकता। इज इट क्लियर बच्चे? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स, जिस पोजीशन में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था अब वो पोजीशन सेम नहीं है। तो द पोजीशन और सर्टेन थिंग्स आर नॉट एग्जिस्टिंग। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने कहा कि आई विल बी नीडिंग द कैनरा बैंक चेक। ओके, आपने आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन थी। वो आपको गुड्स भिजवा रहा है, आप उसको कैनरा बैंक का चेक दे रहे हो। लेटर ऑन पता चला कैनरा बैंक तो मर्ज होने वाला है या मर्ज हो गया है, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कोई कैनरा बैंक। तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी कि जिस हालात में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो टर्म्स एंड कंडीशन उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, लेटर ऑन वो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, आइदर ऑल और वन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन, तब भी ये माना जाएगा कि इट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। Third is very very natural death or incapacity. The person is of unsound mind या met with an accident, cannot perform the contract, तब भी ये supervening impossibility का केस होगा। Any kind of change of law, जैसे change of law में I give you an example, FERA to FEMA। इस केस में भी अगर आपका लॉ ही चेंज हो गया तो इसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कि आपने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के साथ किसी पार्टी के साथ टाई अप किया हुआ था, आप उसको अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, आपको वो करेंसी आ रही थी, तो कॉन्ट्रैक्ट इसके अंडर रजिस्टर्ड था, लॉ ही चेंज हो गया। दिस हैज बीन कंप्लीटली चेंज टू फेमा। अब वो पुराने वाले लॉ के अकॉर्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जैसे कि ओल्ड कंपनीज एक्ट, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 एंड न्यू कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपने पुरानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 2013 से पहले, तब तक तो वो वैलिड था। जैसे ही 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया तो पुराने सारे कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं खत्म हो सकते, यानी कि वो काम कर ही नहीं सकते इस एक्ट के अंदर। अब उनको नया कॉन्ट्रैक्ट इस एक्ट के अंदर बनाना पड़ेगा ताकि वो काम कर सके, पॉसिबल हो सके। अदरवाइज दिस इज नोन एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और आउटब्रेक ऑफ वॉर, अगर दो कंट्रीज में वॉर छिड़ गया है तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आर कमिंग अंडर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। राइट बच्चे? यस, एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? नो मैम। ओके ओके। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें तो लॉ ही कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, राइट? ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड as per legal provisions, as per legal provisions. Yes, लीगल प्रोविजंस का मतलब है लॉ ही इन केसेस में ये बोलेगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, चाहे वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ही उसको बोल देता है। लीगल या कोर्ट की तरफ से ही जजमेंट आ जाती है कि अगर ऐसा कुछ भी, इनमें से कुछ भी, ऐसा पांचों में से कुछ भी होता है तो इट इज ट्रीटेड, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड। यानी कि इसमें लॉ की इंटरवेंशन ऐसी है कि अगर इन पांचों में से कोई भी एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरिंग, तब इट विल बी ट्रीटेड कि कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। नाइदर ऑफ द पार्टी कैन स्यू टू एनीवन। किसी पार्टी के पास राइट नहीं रहेगा कि वो कोर्ट में चैलेंज करे। कब कब? व्हेन द पर्सन इज, यस, who has to perform, या either one of the person is dead and legal heirs are not involved in the contract, तब कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो काम हुआ था चाहे नहीं हुआ था। तो डेथ इज वेरी नेचुरल कैलामिटी। अगर आपने लीगल हेयर्स या किसी को इन्वॉल्व नहीं किया है टर्म्स एंड कंडीशन में, तो एक पर्सन की डेथ से वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मर्जर, डेफिनेटली
अगर कोई इंफीरियर राइट सुपीरियर राइट क्रिएट कर लेता है, ले लेता है, एक्विजिशन हो जाती है, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आगे चलाएगा, नई कंपनी के ऊपर होगा कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चलाएगा या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा। तो न्यू कंपनी हैज ए कंप्लीट राइट टू एक्वायर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द ओल्ड कंपनी। मर्जर के केस में इट विल बी ट्रीटेड द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द ओल्ड कंपनी आर ओवर because new company has a right to take few contracts और cancel few contracts। अगर वो कैंसिल भी करते हैं तो पार्टी के पास कोई राइट नहीं है, राइट, कि आप आपको चैलेंज कर सको, या नई कंपनी के पास चला गया है कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। नई कंपनी की मर्जी होगी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने आगे लेके जाना है, कौन से को कैंसिल करना है। तो मर्जर के केस में भी जितने भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये माना जाएगा कि इट इज ओवर। जैसे कि आप देखिए कि व्हेन इट वाज टेकन बाय आनंद महिंद्रा, सत्यम कंपनी थी, सत्यम के एम्प्लॉइज के पास श्योरिटी नहीं थी कि हमारे को जॉब आनंद महिंद्रा में मिलेगी या नहीं मिलेगी। पूरा एम्प्लॉय बेस चेंज होता है, थोड़े से एम्प्लॉइज रखते हैं। मर्जर के केस में सत्यम एंड ओल्ड एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज ओवर। जैसे ही रामालिंगा राजू ने, कंपनी के चेयरमैन ने रेजिग्नेशन दे दिया, कंपनी दूसरे के हाथ में चली गई, मर्जर हो गया, तो मर्जर के केस में कौन सा एम्प्लॉय रहेगा नई कंपनी में, नहीं रहेगा, दैट इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ न्यू कंपनी। So nobody can force the Anand Mahindra to take all the contracts of Satyam, to take all the employees of Satyam, right? Merger में the contract of company with the employee is treated as over, क्योंकि रामालिंगा राजू is no more responsible, उसने अपनी पोजीशन ही वेकेट कर दी। इंसॉल्वेंसी के केस में भी, व्हेन इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, व्हेन द पर्सन इज अनेबल टू पे ऑफ डेट्स। जब कंपनी का कोई ऐसा पोजीशन होता है, जैसे कि अब आप देखिए कि आई गिव यू एग्जांपल ऑफ रिलायंस अनिल अंबानी। आई वाज रीडिंग न्यूज 2 days बैक, ही सेइंग कि मेरे पास तो फंड्स है ही नहीं, तीन चाइनीज कंपनी ने उसके ऊपर स्यू कर दिया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और इसको हमारे को 17,000 करोड़ रुपए अमाउंट देनी है। वो कह रहा है मेरे पास है ही नहीं, जो आप बेचना चाहते हो बेच दो, राइट। तो अपनी कई कंपनीज उसने इंसॉल्वेंट कर दी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देना कि यस आई कैन नॉट पे एनी ऑफ द डेट्स, वट एवर। कोई कह रहा है कि मेरे पास रोल्स रॉयस कार है, मेरे पास कार्स बहुत है, मेरे पास सिर्फ आज की डेट में एक कार है, अगर आपको वो भी बेचनी है तो बेच दो। तो दैट वॉज द स्टेटमेंट यूज बाय अनिल अंबानी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है सेल्फ डिक्लेरेशन कि आई कैन नॉट पे ऑफ। तो कोर्ट जब ये डिक्लेरेशन लेता है तो उसके बाद एक ऑफिशियल रिसीवर, उसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर, अपॉइंट कर देगा। ऑफिशियल रिसीवर का मतलब है कि अब वो देखेगा कि अनिल अंबानी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसको सेल ऑफ करना है, कैसे सेटल ऑफ करना है 3 चाइनीज कंपनीज को। ऑफिशियल रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ऑफिशियल रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय द जज। जब वो अपॉइंट हो गया तब सारी की सारी कंपनी एसेट्स, पर्सनल एसेट्स ऑफिशियल रिसीवर के हाथ में आ जाएंगे। फिर ऑफिशियल रिसीवर धीरे धीरे उनकी ऑप्शन कराएगा, फिर जो अमाउंट आ जाएगी उसमें कितनों को कितना देना है वो भी ऑफिशियल रिसीवर का काम है। किसी को तो हो सकता है 50% पैसा मिल जाए, किसी को 80% मिल जाए। तो इनसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज ओवर, राइट। और अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन, अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया है जिसमें आपकी म्यूचुअल कंसेंट नहीं थी, तब भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज ओवर। या राइट्स एंड लाइबिलिटीज सिर्फ एक पर्सन के पास है, राइट, सेम पर्सन के पास अगर पूरे के पूरे राइट्स एंड लाइबिलिटीज है, तब भी इट विल बी एज्यूम कि दैट इज ट्रीटेड एज ओवर वंस दैट पर्सन इज नो मोर। तो इन पांचों की पांचों कंडीशन में इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, राइट बच्चे? यस, एनी डाउट? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज समथिंग, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, दैट मीन्स ब्रेकिंग, राइट। सर्टेन ब्रेक ऑफ टर्म्स, कंडीशंस, नॉर्म्स एक्सेट्रा। आपने कुछ तोड़ा, राइट,
वो तोड़ने का मतलब है कि आपने कोई ऐसा जो था मेंशन किया हुआ था ये ऐसे करना है, आपने उसको तोड़ दिया, वायलेशन। ब्रेक बोल दीजिए या वायलेशन बोल दीजिए, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग। वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन इज नोन एज ब्रीच। ब्रीच का मतलब तोड़ना। जो कानून के अंदर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई थी वो आपने कोई उल्लंघन कर दिया, आपने उसको तोड़ दिया, तो दैट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच दो तरह की होगी बेटा, एक्चुअल एंड एंटीसिपेटरी। एक्चुअल का मतलब कि यस रियली, अगर आज सेलर ने प्रॉमिस किया था कि आई विल बी गिविंग यू आईफोन दिस, राइट, टू द बायर। बायर एक नोविस पर्सन है, आपने आईफोन का कवर लगा के उसको दे दिया और जबकि वो आईफोन नहीं है, दिस इज एक्चुअल ब्रीच। प्रॉमिस क्या था? आईफोन देने का, राइट, आपने कौन सा दे दिया? एनी अदर फोन रेदर देन आईफोन, इट इज एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब है कि यस इट हैज बीन वायलेटेड बाय द पर्सन इन्वॉल्व, जिसने जो काम करना था, जो प्रॉमिस किया था वो नहीं किया, राइट। तो एक्चुअल ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस इज ट्रीटेड, यानी कि जब आपको काम करना था तब भी आपने कोई प्रोविजन तोड़ दी, या आपने काम करते करते कोई बीच में प्रोविजन तोड़ दी, तो तोड़ने का मतलब इज एक्चुअल, राइट। अब अगर एंटीसिपेटरी का मतलब होता है कि आपने कोई काम ऐसा किया जबकि परफॉर्मेंस ड्यू होने से पहले आपने तोड़ा है, परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग नहीं। जैसे आपको ये बोला था कि आईफोन मुझे आप कल दे दोगे, तो सेलर इज प्रॉमिसिंग कल आप आ जाइएगा और मैं आपको आईफोन दे दूंगा। अगले दिन आपने आईफोन नहीं दिया, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल ब्रीच है। आईफोन की जगह कुछ और दे दिया, वो भी एक्चुअल ब्रीच है। आपने आज ही बता दिया, कल आपने देना था, आपने आज ही बता दिया कि आईफोन अवेलेबल नहीं है, कल मत आना, दिस इज एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है कि आपने एडवांस में ही, परफॉर्मेंस ड्यू हुई ही नहीं, एडवांस में ही बता दिया आई कैन नॉट डू इट। तो एंटीसिपेटरी पर ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल ब्रीच इज ऑलवेज डन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। आपने आज किसी की पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा कि 1 मंथ के अंदर अंदर मैं आपको इतने गुड सप्लाई कर दूंगा। जब वो डेट आ गई तब आपने मना किया, इट इज एक्चुअल ब्रीच। आपने उसको एडवांस में ही बता दिया 15 डेज पहले कि सर मैं नहीं आपको गुड सप्लाई कर पाऊंगा, आप किसी और से अरेंज कर लो, इट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। इज इट क्लियर? मीनिंग इज क्लियर टू ऑल? यस, somebody please speak, is it clear? Yes, ma'am. तो एक्चुअल ब्रीच का मतलब है जब परफॉर्मेंस वाज ड्यू, यू स्टॉप्ड, यू वायलेटेड, यू ब्रोकन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। आपको बोला गया था, कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बाय द कंपनी कि आपको 2 आवर्स एवरी फ्राइडे आना है और सिंग करना है। आप गए फ्राइडे को, आपने आधा घंटा गाया और उसके बाद आपने कहा मैं और नहीं गाऊंगा, ये क्या होगा? somebody प्लीज रिप्लाई, आई गिव यू एन एग्जांपल। ये कौन सा ब्रीच होगा? company is making an contract कि every Friday you have to come and you have to sing for 2 hours. Person goes and sing for half an hour and says I will not sing more. What is this breach? Ma'am, actual breach. Okay, now understand this, if person has created a contract, उसमें 4 फ्राइडे आ रहे थे, 3 फ्राइडे उसने गाया और उसके संडे को इन्फॉर्म कर दिया कि आई विल नॉट बी कमिंग फॉर द नेक्स्ट वीक एज मैरिज इज ड्यू एट माई प्लेस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ब्रीच इट इज? somebody please reply. Anticipatory. एंटीसिपेटरी, वेरी राइट। एडवांस में बता दिया कि काम नहीं करना है, वो एंटीसिपेटरी हो गया। काम वाले दिन बता दिया काम नहीं करना है, एक्चुअल ब्रीच हो गया। इज इट क्लियर? सो एक्चुअल ब्रीच इज मोर डेडलियर, राइट। दोनों में ही राइट है। क्या राइट्स है अब सेलर के पास? प्लीज अंडरस्टैंड। यस, लास्ट इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है टाइम इज ओवर। टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेटा, टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स। मैम एक चीज पूछना है, हाँ। वो अभी अभी सर कह रहे थे जैसे मार्च में हमारा मेन एग्जाम होगा फर्स्ट सेम का, तो सिलेबस तो अगर पहले कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर कैसे मतलब वो होगा मतलब? एक सेकेंड, लेट मी गो थ्रू हु इज आस्किंग दिस। यस सुरजीत, इस बार सेमेस्टर एक्सटेंड होगा, राइट, बिकॉज मेरे को लगता है नवंबर में वी ऑल आर गोइंग टू मीट,
there is a declaration by the authorities, but wait for the decision. Final decision will come only once the situation of from the ministry level is normalized. तो नवंबर में देर इज एन अनाउंसमेंट कि वी मे मीट, फिजिकल क्लासेस विल हैपन। तो नवंबर एंड दिसंबर आपका एग्जाम चलेगा, राइट, आपका नॉर्मल क्लासेस चलेगा, और जनवरी में हो सकता है कि आपका थोड़ा जो सिलेबस पेंडिंग है, क्योंकि सारे सिलेबस ऐसे कंप्लीट नहीं होंगे। फिजिकल क्लासेस में जब आप लोग बैठेंगे तो देर विल बी सर्टेन डिफरेंसेस, राइट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो विल ट्राई टू कंप्लीट। अब अवीक सर कह रहे हैं तो डेफिनेटली मार्च का उन्होंने बोला है, तो सेमेस्टर इज डिलेड, बिट डिलेड। सर मैम ऑनलाइन तो बंद नहीं होंगे? ऑनलाइन बंद नहीं होंगे। ऑनलाइन विल ऑप्शन विल बी गिवन टू द स्टूडेंट कि आइदर दे कैन अटेंड क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर दिस सेमेस्टर। नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड ऑफ, बट ऑन द रोटेशन बेसिस। स्टूडेंट्स अगर अपनी कंसेंट देते हैं कि नहीं आना है तो इट इज फाइन, ऑनलाइन क्लासेस विल बी गोइंग ओके ऑन फॉर दिस सेमेस्टर। ओके, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके ओके। So there are certain contracts which are time bound. Time bound का मतलब है कि if contract is stated in a manner कि this is over by 1 month, you have to reply within 1 month. आपने 1 month नहीं रिप्लाई किया तब भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट जितने भी आपके जितने ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, दे आर नॉर्मली टाइम बाउंड। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइंट वेंचर के नेचर के होते हैं, दे आर ऑलवेज टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट, इनको बोलते हैं टीबीसी। अगर आपका टाइम उसके केस में खत्म हो जाता है तब ये माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो ओवर, राइट। आपके साथ एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वी आर हायरिंग यू एंड देयर इज 1 year बॉन्ड टाइम, ठीक है, आपने बॉन्ड साइन किया, आप कंपनी में लग गए। दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द कंपनीज। 1 साल आपने जॉब किया, उसके बाद आपने उनको रिजाइन कर दिया, टाइम बाउंड हो गया, तो कंपनी कैन ऑल्सो गिव यू नोटिस और यू कैन ऑल्सो लीव द कंपनी। बट 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको छोड़ना है तो दैट इज चैलेंजेबल। वो स्यू करेगी आपके ऊपर कि यस 1 year बॉन्ड था, अब आपको इतना सैलरी छोड़ना पड़ेगा, इतना आपको ये छोड़ना पड़ेगा। so that can go into the many extent level. Time bound contracts are over once time is over. If time is, जैसे हमारा MOU था कोर्सेरा के साथ, 30th September was the last date, तो 30th सितंबर तक कोर्सेरा आपको सिर्फ फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहा था जो कि आज से पेड हो गए। टाइम खत्म हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज ओवर। सो टाइम लैप्स का मतलब है कि जहां पे आपने लिमिटेशन डाल दी टाइम पीरियड की, जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रीटेड एज ओवर, राइट बच्चे। सो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड। इफ स्पेसिफाइड टाइम इज ओवर, contract is treated as over, right? Contract is treated as over. Okay bache, so this was all about your discharge, where we have covered all the 6 points, right? Tomorrow I am going to discuss about this remedies, right, with you. Yes, in case you have any doubt or any question you wanted to discuss, please let me know. I am seeing that there is one new student, Suraj Tawar. Suraj, Suraj, are you there bache? Yes. Soma, Suraj has left the meeting. Soma, is he a new student? I don't know, ma'am. Yes, Sushmita? Okay, he is a new student. Okay, okay, okay. मैम पेपर के बारे में बताइए ना। Yes, Yogesh, I discussed the paper. You please ask if any doubt is there. Good morning. Yes, Yogesh. In case you have any doubt, just let me know. I will be checking your copies and give you the marks by Tuesday, Wednesday. Okay? Yes, next week. Yes. Okay, okay. Soma, have you added him to this group? सूरज को ऐड कर लिया था बच्चे आपने? जी। ओके ओके। तो मेरे साथ तो उसकी शायद फर्स्ट क्लास थी आज। यस,
उससे Yes, पहले ma'am. वाली, ओके ओके, फाइन फाइन, right. Yogesh, do you want to ask any question which is like not very clear in the exam? Yes, please ask. नो मैम, मैं तो वैसे ही डिस्कस करने के लिए बोल रहा था मैं फोन। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जैसे फर्स्ट केस, अगर फर्स्ट क्वेश्चन था तो इट वाज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पे मेडिकल अटेंडेंट अपनी पोजीशन यूज करके उसको इंड्यूस करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ही दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सिंपल था, आप डिफरेंस लिख सकते हो। वेजरिंग इज समथिंग सट्टेबाजी, दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज नॉट लीगल। Contingent are legal. Contingent is dependent upon condition. So all agreements are contracts और all contracts are not agreement, ये स्टेटमेंट बहुत बार डिस्कस की है, उसमें वो 9 पॉइंट्स आपको लिख के आने थे, बट ध्यान दीजिएगा कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, जस्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया और 9 पॉइंट्स लिखे, दैट्स ऑल। मैम जस्ट 5 पॉइंट्स में तो 5 to 6 लाइंस लिखने में से ही हो जाता है ना। 5 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 1 पेज, मैक्सिमम। मेरे तो 1 पेज भी नहीं हो। मैं चेक करती हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि लेंथ इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर कंटेंट। हाँ मैम और एक चीज, आप मैं तो बुक नहीं मैंने खरीदना नहीं चाहती हूँ, तो वो लाइब्रेरी एक बोला था कि लाइब्रेरी में जाके लिंक को ओपन करके वो मैंने जो बुक से आप नोट्स कर सकते हो, वो कैसे करना है वो थोड़ा। ओके ओके, आपको लिंक दिया हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का, शेयर किया हुआ है आपके साथ? मैंने कौन एक्चुअली जब अभी तो मैंने नहीं जाएंगे Yes, कॉलेज ma'am. में, Pradeep sir क्योंकि ने दिया। जाते शेयर किया हुआ है, एक लिंक शेयर किया हुआ है, किसी बच्चे के पास तो जरूर होगा। कैटलॉग खुल जाती है, उस लिंक को क्लिक करोगे कैटलॉग आ जाएगी, उसमें आप सर्च करोगे जैसे कि बिजनेस लॉ या फिर मर्केंटाइल लॉ, जो भी, तो कितनी बुक्स पड़ी हुई है लाइब्रेरी में वो आ जाएंगी, फिर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। दीपक, आपने बेटा ये ट्राई किया है? Yes, ma'am. Pradeep sir ने दिया था एक बार। मैं सिर्फ आपके नोट्स पढ़ूंगा। इज दैट यस यस, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स हैव टू बी वेल मेंटेन्ड, राइट। यस यस सूरजीत, अगर आप नोटबुक बना रहे हो, साथ साथ लिखते जा रहे हो, माय नोट्स आर वेरी मच सफिशिएंट, वेरी मच, क्योंकि एक पॉइंट को मैं 2 से 3 बार एक्सप्लेन करती हूँ, तो जस्ट नोट इट डाउन। अगर आपके नोट्स कंप्लीट है तो इट इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट बच्चे। सो ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीक। यस यस मैम, आपकी लैंग्वेज क्या योगेश, क्या बी क्लियर, लैंग्वेज तो मैं दोनों यूज करती हूँ आपके साथ, बहुत गुड है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। So we'll meet next week. Till then you all take care. Attempt your test. हाँ, आज मैंने जो है आपको थोड़ा पुराना ही रिवाइज करवाया था, तो पुराने के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, तो just do it. Next week we'll have class from Monday. Okay? ओके मैम, Okay. Thank you. थैंक यू। Thank you, beta. Thank you. Thank you, ma'am.